تو مجھے یہ بتائیے گا یہ جذبہ آپ کے اندر اور یہ موٹیویشن کہاں سے آتی ہے؟ کچھ کرنا ہے، مجھے بیٹھنا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا ہے، کیونکہ آرام کرنے سے طاقت اور گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے نزدیک نہ پاؤں تو پھر شاید کچھ بھی نہیں ہوں میں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ ہے تو شاید میں یہ سب کچھ کر پا رہی ہوں، ورنہ میرے اندر اتنا پاور نہیں ہے، اتنی میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں ہل بھی سکوں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کسی کے ساتھ، لیکن میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا ہوا ہے کہ وہ تکلیف کے باوجود مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے رباب فاطمہ اور میں حاضر ہوں آج دا پاور منٹ سے، اور میرے ساتھ ہیں بہت معزز مہمان جن کا نام ہے مس نور پاورٹی والی۔ مس نور، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ بیٹا آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بہت خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد پرنسپل بننے پر، مریم مدرسہ اکیڈمی کی ماشاءاللہ اس ترقی کے لیے، اور اس اتنی ساری محنت آپ کی جو رنگ لے کر آئی اور آج ماشاءاللہ ایز اے پرنسپل کام کر رہی ہیں۔ تو مس نور باجی، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو یہ فیلنگس ہیں، آپ ایز اے پرنسپل بن گئی ہیں، تو تھوڑا بتائیں گی کہ کیا آپ محسوس کر رہی ہیں؟ جی بیٹا، بہت شکریہ، اور آپ نے مجھے اس کی مبارکباد دی۔ ویسے میں تو سمجھتی ہوں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی تک مجھے بہت ساری باتوں کی خبر نہیں ہے، اور بہت ساری باتوں کے لیے مجھے آپ لوگوں سے مشورہ بھی لینا پڑتا ہے، اور یعنی کہ میں ابھی سیکھنے کی پوزیشن میں ہوں۔ اور یہ سر ریحان اللہ والا کی بڑائی ہے کہ انہوں نے مجھے اٹھا کے یہاں بٹھا دیا اور کہہ رہے ہیں آپ پرنسپل ہیں۔ تو بہرحال میں ابھی اسٹوڈنٹ ہی رہنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں اسٹوڈنٹ رہوں، کیونکہ اسٹوڈنٹ رہنے میں تھوڑا سا مجھے فائدہ ہے کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو مجھے اچھا لگتا ہے سیکھنا، اور میں آئی بھی یہاں پر تھی اسی لیے کہ مجھے سیکھنے کو زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ آپ لوگوں کا سب کا شکریہ کہ آپ لوگ کوئی بھی بات گائیڈ کرنے میں مجھے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوتی، اور آپ لوگ مجھے آرام سے سکھا دیتے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت زیادہ بڑی بات ہے، اور میں سمجھتی ہوں میں جتنا شکریہ ادا کروں اللہ تعالیٰ کا اور پھر اس کے بعد سر ریحان اللہ والا کا بہت کم ہے، میں سمجھتی ہوں۔ شکریہ، اور میں بہت خوش ہوں یہاں پر، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں یہاں پر کام کرنے میں کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھ سکوں، اور وہی میں کر رہی ہوں، اور جس کے لیے میں یہاں پر آئی تھی کہ چلیں ہمیں مصروفیت تھوڑی سی مل جائے گی، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ مصروفیت ہو گئی ہے۔ الحمدللہ میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں چل پھر رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کرے گا کہ انشاءاللہ آگے بھی میں اس قابل رہوں گی۔ تو بس یہی ایک تھوڑی سی چھوٹی سی اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے اور گزارش ہے آپ لوگوں سے بھی کہ آپ لوگ ہمت بڑھا دیتے ہیں، یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ شکریہ۔ کیا خوبصورت انداز ہے، اور انداز بیاں، اور آپ کی آواز اور آپ کا جذبہ، آپ کا حوصلہ، اٹس ویری آپ انسپائریشن ہیں اور رول ماڈل ہیں آپ ماشاء اللہ سے۔ آپ کی انرجی، آپ کی سوچ، آپ کا جذبہ، جس طرح میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ روز بروز ایکٹیویٹیز کروا رہی ہوتی ہیں، میرے لیے اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ تو آپ ہماری استاد بھی ہیں، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سے۔ جہاں کہیں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو بہت موٹیویشن بھی آپ سے ملتی ہے۔ تو میں جاننا یہ چاہتی ہوں مس نور آپا، نور باجی، یا جو بھی ہم کہیں گے، آپ نوری نور ہیں ماشاء اللہ سے، تو مجھے یہ بتائیے گا یہ جذبہ آپ کے اندر اور یہ موٹیویشن کہاں سے آتی ہے؟ بیٹا میرا جذبہ جو ہے یہ بس یہ ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے بیٹھنا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا ہے، اور آرام کرنے والے جب جسم کی ہڈیوں کو طاقت نہیں ملتی، کیونکہ آرام کرنے سے طاقت اور گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا جذبہ جو ہے اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے تو مصروف رکھنا ہے۔ اس سے میرے اندر تھوڑی سی توانائی جاگتی ہے اور میں تھوڑا سا ایکٹیو رہ پاتی ہوں۔ تو میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہتی ہوں، بس یہ ایک وجہ ہے، اور تو کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی۔ بس میں یہی چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے کام کرائے جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب وقت نظر آئے تو میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس حالت میں پہنچوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی دو خواہشیں ہیں، اللہ پاک انہیں قبول فرمائے۔
आमीन सुम्मा आमीन। और मैं ये समझती हूँ हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि जब भी हमारा आखिरी वक्त हो और हम अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना हो, बस कुछ दुनिया में एक ऐसे नेक अमाल करके चले जाएं जिससे हमारी जिंदगी में भी और हमारे जाने के बाद भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हम इस सोसाइटी पर ला सकें। मैं जानना चाहूंगी कि आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ से, किस शहर से, किस मुल्क से आप ताल्लुक रखती हैं, कहाँ पली, कहाँ बढ़ी, और फिर रेहान स्कूल का एक्सपीरियंस थोड़ा सा जरा बताइएगा। जी, बिल्कुल बेटा, मैं लाड़काना शहर यानी कि पाकिस्तान की ही पैदावार हूँ और पाकिस्तान में ही पैदा हुई। 1961 में मेरी पैदाइश हुई और 61 के यानी कि जनवरी का ही महीना था। तो 61 में मेरी पैदाइश हुई और मैं आज 64 साल की हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये जो ज़िंदगी गुजरी, तो आधी ज़िंदगी समझ लें कि सिंध लाड़काना में गुजरी और आधी ज़िंदगी मेरी कराची में गुजरी। तो वहाँ पर मैंने इंटर तक तालीम हासिल की और उसके बाद मैंने वहीं पर नौकरी का आगाज़ किया था, क्योंकि वहीं पर मैंने रिक्रूटमेंट का इम्तहान पास किया था। जब रिक्रूटमेंट का इम्तहान पास हुआ, फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे नौकरी मिली। फिर वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र कराया था लाड़का कराची के लिए। कराची तो नहीं हुआ था मेरा, हैदराबाद हुआ था। फिर हैदराबाद से म्यूचुअल करके मैं कराची आई थी, क्योंकि डायरेक्ट कराची से लाड़काना से कराची और कराची से लाड़काना का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। तो इस वजह से मुझे म्यूचुअल करके आना पड़ा था यहाँ पर कराची में। तो यहाँ वहाँ पर मैं ऑपरेटर थी और यहाँ आने के बाद मैं यूडीसी क्लर्क बनी थी, जो मैंने 10 साल की सर्विस पे रिटायरमेंट ले ली थी जब नवाज शरीफ पहली मरतबा आए थे और उन्होंने कहा था कि हम गोल्डन शेक हैंड दे रहे हैं। तो मुझे क्योंकि आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे, क्योंकि गाड़ियों में, बसों में, जो क्योंकि मेरा घर कोरंगी में था और मैं ऑफिस जाती थी आई चौधरीगढ़ रोड। तो आई चौधरीगढ़ रोड जाने में यानी कि सुबह 8 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाती थी क्योंकि इतना रश होता था गाड़ियों में कि मुझे पहुंचने में बहुत परेशानी होती थी, बहुत बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने कहा कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी, जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास अपनी कन्वेंस तो थी नहीं कि मैं उससे चली जाती। तो बहरहाल गाड़ियों का तो इंतजार वेट करना ही पड़ता था। तो फिर मैंने उसको नौकरी को कहा मुझे नहीं करनी और 10 साल की सर्विस में मैंने रिटायरमेंट ले ली। तो बस उसके बाद फिर ये कि मैं थोड़ा बहुत घर में जैसे काम वाम करती रही और इसी तरह से मैंने सारी जिंदगी गुजार ली। और मुझे मैं तकरीबन जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, यानी कि 82 में हुआ था शायद, हाँ 82 में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। उसके बाद फिर ये कि हम लोग वहाँ से लाड़काना से शिफ्ट हुए थे यहाँ पर, और अभी तक हम कराची में ही हैं और कहीं और शिफ्ट नहीं हुए। बस ये छोटी सी एक कहानी है मेरी। और इसके बाद फिर मैंने वेलफेयर भी बनाई थी, जो मेहरान टाउन में मैंने अपना प्लाट लिया था, वहाँ पर खरीदी थी ज़मीन और उसके ऊपर मैंने घर बनाया था। तो वहाँ पर जिन लोगों ने घर बनाए थे उनके घर टूट रहे थे, जिसकी वजह से फिर मैंने वहाँ पर वेलफेयर बनाई थी कि भाई ये घर क्यों तोड़ रहे हैं आप, और लोगों को, दूसरों को क्यों बेच रहे हैं आप, दूसरों को ना बेचें, हमसे इसकी कीमत लें, हम इसकी कीमत देने के लिए तैयार हैं। इस वजह से मैंने वेलफेयर बनाई थी, जिसमें वेलफेयर में आप जानते हैं कि जो भी सी बनती हैं उसमें कम से कम 10 लोग जो होते हैं वो रजिस्टर होते हैं। तो रजिस्टर में सदर और बहुत सारे ओहदे होते हैं। तो वो उन सब में जो हमारे सदर बने थे, यानी कि एक अच्छे माने जाने वाले थे कि भाई ये अच्छे हैं इस एरिया में और इनका काम कारकर्दगी अच्छी है, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं को बना लेते हैं। तो उनको बनाया था। उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि भाई हम वहाँ बनने के लिए हम तैयार हैं। हमने कहा चलें ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप राजी हैं तो फिर उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठ के ना लोगों को इस तरह से बहकाना शुरू कर दिया कि आपके घर छीन लेंगे और आपकी बच्चियों को उठा के थाने में ले जाएंगे, आपको क्या मिलेगा, इससे बेहतर आप घर खाली कर दें। यानी कि उसका इफेक्ट जो पड़ रहा था वो उल्टा पड़ रहा था। यानी कि मैंने खोली थी इसलिए वेलफेयर, मैंने इसलिए बनाई थी और लोगों को इसलिए जमा किया था कि हमारे लोग जो हैं परेशानी से बचें और इसकी कीमत दे के हम खरीदें वो प्लाट, ना कि आप दूसरों को 3 लाख में उस वक्त केडीए दे रहा था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि
जब जो अगला दे रहा है आपको कीमत, तो आप दूसरे से क्यों ले रहे हो और उससे क्यों खाली करा रहे हो? तो ये सारी बातें जो थी ना, मुझे बहुत परेशान करती थी। तो मैंने इसलिए वेलफेयर खोली थी। फिर उसके बाद जब इस तरह से सिस्टम हुआ तो फिर उसे मुझे बंद करना पड़ा। तो बहरहाल बहुत कुछ जिंदगी में गुजरता है, और सबको अगर याद रखेंगे तो हम जी नहीं सकेंगे, इसलिए याद नहीं रखते और भूल जाते हैं, खुश रहते हैं। ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग आपकी जो है लाइफ जर्नी है। जैसा कि आपने बताया कि आपका ताल्लुक लाड़काना से भी है, तो आपको सिंधी भी आती होगी, सिंधी आती है आपको? जी हाँ बेटा, मुझे सिंधी पूरी आती है। जिस तरह सिंधी बोलते हैं उसी तरह से मैं भी सिंधी बोल लेती हूँ। लेकिन 40 साल हो गए तकरीबन, थोड़ा बहुत अगर झटका कुछ कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है तो वो हो भी जाता होगा। लेकिन बहरहाल मुझे पूरी सिंधी आती है और मैं बोल सकती हूँ, किसी को भी अपना मैसेज समझा सकती हूँ। वाह! ज़बरदस्त, अमेज़िंग। वैसे सिंधी में ना मुझे बस एक ही जुमला आता है, वो है तुंहिंजो नालो छा आहे? बस। इतना आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। बस इतना आता है, और बाकी अगर फैमिली के बारे में पूछे कि तुंहिंजो पीउ जो नालो छा आहे, तुंहिंजो माउ जो नालो छा आहे, और बस छा आहे कि कुछ वर्ड्स है जो मुझे आते हैं। तो मैं बताया, मैं सही बोल रही हूँ सिंधी? जी, बिल्कुल सही बोल रही हैं और अच्छा बोल रही हैं, और अगर सीखना चाहेंगी तो मैं सिखा दूँगी। वाह! ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हम तो ज़िंदगी में, मैंने आपको बताया ना कि ये हमारी, आप हमारा बहुत कीमती असासा हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है, मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपसे कुछ सीख सकूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, और जो है एक कहते हैं ना, एक एनर्जी मिलती है, आप में पॉजिटिव वाइब्स हैं जो हम में खुद आती हैं। तो अल्लाह ताला ये सीखने सिखाने का अमल हमारा और आपका यूं ही रवा दवा रहे। एक रेहान स्कूल की जो बड़ी सी छतरी है, हम सब उस अम्ब्रेला के जो है अंदर सीख सकें, और जो है ये सफर यूं ही कायम दायम रहे। मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्या मसरूफ़ियात होती हैं? रेहान स्कूल में आप होती हैं, फिर उसके अलावा आपकी क्या घरेलू मसरूफ़ियात क्या हैं? क्या एक्टिविटीज़ हैं? क्या करना पसंद करती हैं? बेटा, और तो दूसरी मसरूफियात के लिए टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर 12 बजे तक तो बच्चे होते हैं। उसके बाद फिर फैसिलिटेटर वगैरह होते हैं, उनको थोड़ा बहुत समझाना होता है, उनसे कुछ सीखना होता है, उनको कुछ बताना होता है। तो 1:30-2 बजे तक वो लोग होते हैं। फिर उसके बाद नमाज वगैरह, खाना वगैरह का सिस्टम होता है। फिर उसके बाद ये कोशिश करती हूँ कि शायद इंग्लिश थोड़ी सी आ जाए, क्योंकि आ नहीं रही वो। और कॉल एनी करने की कोशिश करती हूँ, तो कॉल एनी जो है वो नाराज है, वो बात ही नहीं करती। और इस तरह से काफी टाइम गुजर जाता है। और फिर उसके बाद शाम का जो है वो हिसाब किताब आप जानते हो कि एक आध इंटरव्यू हो जाता है, और इंटरव्यू हो जाता है तो वो तो खुशी की बात होती है मेरे लिए, क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए बहुत परेशान होती हूँ कि किस तरह से मुझे एक इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू मिल जाए। तो उसके बाद ये है कि रात को 8 बजे से 10 बजे तक की अब क्लास ले रही हूँ, तो वो भी वो करती हूँ। बस ये सारा दिन इसी तरह मसरूफियत से गुजर जाता है। कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ सीख सकूं। अमेज़िंग। मुझे ये बताइएगा कि ज़िंदगी का जो ये खूबसूरत सफ़र गुज़र रहा है, आपके सीखने का भी और आपके सिखाने का भी, होता ये है कि हम जब सीख जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि अब हमें सीखना नहीं है, सिर्फ सिखाना ही है। लेकिन जैसा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सब सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, सब एक साथ एक ही काम कर रहे हैं, तो क्या फीलिंग्स आती हैं अंदर से? मतलब क्या बचपना लौट आता है, या कुछ बोरियत होती है? क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी उस वक्त? मैं तो बच्चों से भी यही कहती हूँ कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं कोई बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं अभी बच्ची हूँ। आप आपके साथ खेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बच्चे जब ब्रेक करते हैं तो फिर वो बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उनके साथ मैं भी खड़ी हो जाती हूँ, हाँ भाई चलो खेलो। ये वो लूडो वगैरह खेलते हैं और मैं उनके साथ उनको देखती हूँ, आगे पीछे रहती हूँ। तो इस तरह से मुझे भी अच्छा लगता है, और मैं बच्चों से ये बार बार कहती हूँ कि मैं अभी छोटी हूँ, मैं अभी बड़ी नहीं हुई। तो बहरहाल जैसा भी है, टाइम अल्लाह ताला इज्जत के साथ गुजरवा दे, ये बड़ी बात होती है। और इसी तरह से चलती है जिंदगी। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि नूर आपा की ज़िंदगी में उनको क्या लगता है कि वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है? और जब उसको सोचती हैं तो खुश हो जाती हैं। ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप अपनी ताकत समझती हैं?
मैं समझती हूँ, मैं जिस कदर कोशिश करती हूँ कि मैं अल्लाह ताला की याद में रहूँ, ये मेरा पावर ज़्यादा है और बाकी सब कुछ मेरा धोखा है। और दुनिया में सिर्फ़ अल्लाह ताला की रहमत अगर हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है, और जब अल्लाह ताला की रहमत से इंसान बेखबर हो जाता है और उस तरफ ध्यान नहीं देता, तो बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद अपनी समझ में नहीं आती हैं और वो बिगाड़ में आ जाती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं अल्लाह ताला की रहमत को अपने नज़दीक ना पाऊँ तो फिर शायद कुछ भी नहीं हूँ मैं। लेकिन जब अल्लाह ताला की रहमत मेरे साथ है तो शायद मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ, वरना मेरे अंदर इतना पावर नहीं है, इतनी मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं हिल भी सकूँ। तो बहरहाल ये मैं मेरे अल्लाह की मेरे ऊपर रहमत है कि उसने मुझे इतनी ताकत, इतना पावर दिया हुआ है कि मैं चलने-फिरने में कोई परेशानी महसूस नहीं करती। और जबकि कुछ ज़ाहिर बात है, इंसान हूँ, बीमार भी हो सकती हूँ और सब कुछ हो सकता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे ताकत इतनी दी हुई है कि मैं उसका जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और इस उम्र के लोग वैसे भी आप समझ सकते हैं कि कमर में दर्द और घुटनों में दर्द के शिकार होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चीज़ नहीं अभी तक दी, और अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि मुझे हमेशा अल्लाह पाक इसी तरह चलते-फिरते रखे, और जब मेरा मेरा टाइम ख़त्म हो जाए, उसकी मर्ज़ी शामिल हो जाए उसमें, तो इसी तरह से अगर ले ले और किसी का मोहताज ना करे। तो मेरी सिर्फ़ एक यही अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इज़्ज़त और ईमान के साथ मुझे चलते हाथ-पैर उठा ले। बस ये मेरी एक छोटी-सी तमन्ना है कि अल्लाह पाक मुझे जब बख्श दे और जब उसकी रहमत हो जाए मेरे ऊपर, तो वो मुझे अपने पास बुलाए, लेकिन चलते हाथ-पैर किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ने आपको बहुत हिम्मत दी है और इतना आपको पता है क्या, मैं ये समझती हूँ ना जाने मुझ जैसे हजारों लोग कितने होंगे जो आपको भी अपना आइडियल मानते हैं, क्योंकि आपके अंदर से हमें हिम्मत मिलती है, वो सोच मिलती है। मैं तो सिर्फ अपने बारे में यहाँ बता सकती हूँ, ना जाने और भी कितने लोग होंगे। और हम सब जो है दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती वाली जिंदगी दे, सेहतियाबी दे, और यूं ही आप चमकती रहें, दमकती रहें। जैसा आपका नाम नूर है, वैसे ही नूर रेहान स्कूल में आप फैलाती रहें। मुझे ये बताइएगा कि आपको वैसे खाने पीने में क्या पसंद है? खाने पीने की क्या एक्टिविटीज होती हैं आपकी? जी बेटा, मुझे बेसन की रोटी ज़्यादा पसंद है, जो चटनी के साथ हो, लहसुन की चटनी के साथ हो। और बिरयानी पसंद है, कौरमा पसंद है, चार गोश्त पसंद है, खीर पसंद है और लबे शीरी ज़्यादा पसंद है। और इसके अलावा जो है, अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मच्छी ज़्यादा खाऊँ, क्योंकि मच्छी से मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिला। और इससे पहले 15 साल तकरीबन मैं अपनी कमर की तकलीफ़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। क्योंकि मेरे जो कमर के मोरे थे वो हिल गए थे और वो गलत जुड़ गए, जिसकी वजह से मैं जब रिक्शा में बैठती थी या फोर सीटर में बैठती थी, क्योंकि इतनी इस्तात नहीं रखती थी कि मैं कार में कहीं जाऊं या कोई और बंदोबस्त हो, तो अक्सर हमें बसों में और धक्के खाने पड़ते हैं। तो उसमें मुझे जब बैठना होता था तो मैं हाथों के बल बैठती थी, यानी कि मैं अपनी कमर नहीं टेक सकती थी, यानी कि बैठ नहीं सकती थी। हाथों के ऊपर वज़न देके मुझे उसका सफ़र तय करना पड़ता था, ताकि झटका लगने से मेरी कमर में तकलीफ़ ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। फिर उसके 15 साल इसी तरह से मेरे गुज़रे थे। और उसके बाद फिर जब मैंने मच्छी खाना तो मुझे उससे फ़ाक़ा हुआ, और आज तक वो मच्छी की वजह से मेरा जिस्म जो है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से चल रहा है। और मैं इसको अल्लाह का शुक्राना अदा करती हूँ कि मच्छी जो थी मेरे लिए दवा बन के लगी, और मुझे उस तकलीफ़ से आज़ादी मिली। और अब मुझे उस जगह पे भी अगर चोट लग जाती है, अक्सर ऐसा होता है चलते-चलते फोर सीटर से किसी चीज़ से टकरा भी जाती हूँ, अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि बीच रोड पे भी चल रही होती हूँ कभी-कभी मैं, तो झटका लगने से उसी जगह पे झटका लगता है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई चोट लगी है। तो ये अल्लाह का शुक्राना अदा करती हूँ मैं कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत, इतनी ताकत और किसी भी तकलीफ से महफूज रखा हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं
इसका जितना शुक्र अदा करूं कि कम है, क्योंकि ऐसा नहीं होता किसी के साथ, लेकिन मेरे साथ अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एहसान किया हुआ है कि वो तकलीफ के बावजूद मुझे तकलीफ नहीं होती। बस अल्लाह ताला आपको इसी तरह सेहतयाबी की ज़िंदगी दे और हर खाने वाली, पीने वाली, चाहे और छूने वाली, चाहे हवा हो, चरिंद हो, परिंद हो, सब आपके लिए जो है वो बेहतरी के लिए सबब बन सकें। मुझे ये बताइएगा कि ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस आपको परेशान करते हैं या आपको हिम्मत देते हैं? कैसे काम लेती हैं उन चैलेंजेस को हल करने के लिए? चैलेंजेस तो आते हैं, और आपको पता है यहाँ पर हर काम करना है और ज़रूर करना है, लाज़मन करना है। तो कोशिश करती हूँ, हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता है तो फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ देती हूँ कि चलें कल ट्राई करेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है हाँ करना है, आज नहीं तो कल ज़रूर करना है, तो कोशिश करती रहती हूँ। अगर हो जाता है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, नहीं होता है तो भी शुक्र अदा करती हूँ, और कोशिश करना मेरा काम है। बाकी मंजिल पे पहुँचाना अल्लाह ताला का काम है। तो बस यही है सिलसिला। ज़बरदस्त। चाय की शौकीन हैं आप? बहुत ज्यादा। ओह हो! फिर तो पक्की दोस्त पक्की दोस्ती है। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि रेहान स्कूल में हम एआई एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, तो जब आपने शुरू-शुरू में ये जॉइन किया था, तो उसका थोड़ा-सा ज़रा मुझे बताइएगा कि उस एजुकेशन के बारे में आप क्या जानती थीं? और यहाँ आके क्या महसूस क्या हुआ था? ये दूसरी एजुकेशन और जो जिन एजुकेशन से हम पहले पढ़ चुके हैं, वो एक अलग एजुकेशन, तो मतलब क्या हुआ था? कुछ महसूस हुआ था, कुछ अलग हुआ था, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो तो ज़रूर बताएँ मुझे। नहीं बेटा, मैं जब रेहान स्कूल में आई थी तो उस वक्त, उससे पहले 2 ढाई साल से मैं तकरीबन सर रेहान अल्लाह वाला की वीडियोस देखा करती थी, स्कूल देखती थी, हर चीज नजर आती थी मुझे यूट्यूब पर। मैं सब चीज सर्च करती थी और बार बार देखती थी। जो सर रेहान अल्लाह वाला की वीडियोस होती थी वो मैं देखा करती थी। तो जब मैं स्कूल में आई थी फर्स्ट टाइम, तो मैं अंदर जा नहीं सकी थी। फिर उसके बाद आपके कैंपस में भी आई थी, मुनव्वर कैंपस पे। वहाँ पर मैडम थी, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास 20 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को हम नहीं ले सकते। तो मैंने कहा, सर ने तो कहा था कि एडल्ट को भी रखा जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, 20 साल से ज़्यादा नहीं रखा जाता। फिर मैं वापस चली गई थी, और फिर दोबारा जब सर रेहान अल्लाह वाला का दोबारा ये आर्डर आया कि हम एडल्ट को भी पढ़ाते हैं, 2 घंटे की क्लास होती है, तो फिर मैंने दोबारा जाने की हिम्मत की और जाके मैं बैठ गई। हालांकि निकाला जा रहा था उस वक्त भी मुझे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं बैठी हूँ। तो इस तरह से करके मैं जम गई, और बच्चों ने भी ज्यादा मेरे पर तवज्जो नहीं दी थी, और किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि आप क्यों बैठी हैं, क्या है क्या नहीं है। बहरहाल इस तरह से फिर मैं आगे बढ़ती रही, और 15 दिन बाद जब सर रेहान अल्लाह वाला आए थे तो उन्होंने मुझे एज ए स्टूडेंट माना, तो सबने माना फिर। और मुझे नहीं लगा कुछ भी ऐसा बदला हुआ कि कोई इसमें मैं इस चीज को जानती नहीं हूँ, या इस स्कूल को मैं पहचानती नहीं हूँ। मैं मुकम्मल तौर पर मैं उस स्कूल को पहचानती थी। हर चीज मेरी देखी भाली थी, और जिस तरह से बच्चे काम कर रहे थे वो सब मेरे सामने से 2 ढाई साल से गुजर रहा था। तो मुझे कोई भी चीज ऐसी नहीं लगी कि ये मैं इस चीज को नहीं जानती हूँ। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि ये जो रेहान स्कूल की एक सोच है, विज़न है, मिशन है, हम देख रहे हैं बदलते हुए इस सोच को कि लोगों में अब एआई की सोच आना शुरू हो गई है। काफ़ी लोग अब इस तरफ समझदारी के साथ जो है उस ट्रेडिशनल एजुकेशन को छोड़ के अब एआई एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ये जो एक इनकलाबी सोच ही मैं इसको कहूँगी कि ये इनकलाबी सोच पूरे पाकिस्तान में कब तक मुमकिन है कि लोग किस तरह से इस चीज़ को समझ सकेंगे और अपने बच्चों को इस एजुकेशन की तरफ ला सकेंगे? अभी की क्या सूरत-ए-हाल है और आप क्या समझती हैं कि लोग मज़ीद इसकी तरफ आएँगे या पीछे हटेंगे?
नहीं, माशाल्लाह ये आगे ही बढ़ेगा और इंशाल्लाह 3 साल बाद ही आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ चुका होगा पाकिस्तान में और बहुत सारे लोग इस तरफ आ चुके होंगे और बहुत सारे लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा चुके होंगे और हमारे मुल्क में जो परेशानी है, जो गुर्बत है, उसका तकरीबन मैं समझती हूँ 60% तो नहीं तो 50% ज़रूर फ़र्क पड़ चुका होगा हमारे माशरे पर इसका। और 3 साल बाद ही आप इसको आज 2025 है, इंशाल्लाह 2028 में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका मुल्क जो है ना आधे से ज़्यादा इसमें तब्दीली आ चुकी है और बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका है। इंशाल्लाह 50% तब्दीली आ चुकी होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप जो हैं अभी वहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों के साथ काम कर रही हैं, तो बच्चों के साथ ये एक्सपीरियंस, ये वक़्त कैसा गुज़र रहा है? जी, माशाल्लाह अच्छा गुज़र रहा है और बहुत ज़बरदस्त है और मदरसा मदरसा और एकेडमी दोनों साथ-साथ चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में छोटे-छोटे बच्चे भी हैं और एकेडमी में जो हैं वो 6-7 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन करा लिया है और और भी बच्चे आना चाहते हैं और लेकिन फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं है। तो आज मैंने ऐलान किया है सर रेहान अल्लाह वाला के कहने पर कि कम से कम 15 फरवरी तक हम एडमिशन फ्री कर रहे हैं। तो अब देखते हैं 15 फरवरी तक क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो बहरहाल यहाँ पर लोगों की सोच यही होती है कि हमें कुछ देना ना पड़े और सब कुछ हमें मिल जाए थाली में रख के और फिर उसके बाद छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसा भी मैंने देखा है, तो इस वजह से देखते हैं अल्लाह मालिक कि क्या होता है। कोशिश करना हमारा काम है, मदद करना हमारे रब का काम है। जी, बिल्कुल अल्लाह अल्लाह पाक जो है तमाम कामयाबियाँ दे और जो विज़न, जो मिशन लेके आप भी चल रही हैं सर रेहान का अल्लाह ताला उसमें भी आपको कामयाबियाँ दे। मुझे ये बताइएगा कि सुबह से लेकर जो एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल की, तो क्या एक्टिविटीज़ आप की होती हैं और किस तरीके से उसको आप मैनेज कर रही होती हैं अपनी टीम के साथ? जी, बिल्कुल, मैं सुबह जब बच्चे आते हैं तो मैं चाहती हूँ कि प्रे जल्द से जल्द शुरू हो जाए और प्रे के बाद फिर हम योगा कराते हैं, हल्का-फुल्का ही कराते हैं क्योंकि अभी मेरे पास टीम ऐसी नहीं है जो योगा सही से करा सके या बच्चों को मैं टीवी में दिखाऊँगी और उनसे योगा सीखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश मेरी यही है। और मेडिटेशन कराते हैं, उसके बाद फिर ये कि छोटी-सी मैं एक छोटा-सा लेक्चर देती हूँ बच्चों को समझाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं बच्चों को एक छोटा-सा लेक्चर देती हूँ, उसके बाद बच्चों का सबक होता है, सबक के बाद फिर बच्चों को कलमे वगैरह तर्जुमे के साथ सिखाने की कोशिश करते हैं और इधर ये तस्कीन फ़ातिमा के साथ जो बच्चे होते हैं यानी कि जो एआई सीखने के लिए आते हैं, वो बच्चे पहले तो सबक लेते हैं, उसके बाद फिर एआई की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर सीख रहे होते हैं, तो तस्कीन फ़ातिमा उनको सिखाती हैं और कुछ कभी मैं भी चली जाती हूँ और मैं भी समझाती हूँ। तो कैनवा पोस्टें बनाते हैं, वो स्टोरी पोस्ट बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम करें और उसके अलावा वो 3-4 दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू देने लेने की भी कोशिश की है और आहिस्ता-आहिस्ता सीख जाएँगे। अभी थोड़ा-सा अटक जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। इसी तरह से और कॉलोनी भी करने की कोशिश कराई गई है कि कॉलोनी करें, कैनवा और कॉलोनी और चैट जीपीटी और ये पोस्टें वगैरह बनाने का सिस्टम अभी शुरू किया है इंशाल्लाह और बच्चे जब खुद सीखते हैं तो दूसरे जो बच्चे आ रहे होते हैं उनके पास उनको भी सिखा रहे होते हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम चलाया हुआ है अभी। इंशाल्लाह आगे चल के और बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ बहुत जल्द 7-8 बच्चे तो इंशाल्लाह यहाँ पर जल्दी ट्रेन हो जाएँगे। इंशाल्लाह ज़रूर। मुझे ये बताएँ कि ये जो हम लोग टास्क कर रहे होते हैं, आपका इसमें सबसे फ़ेवरेट टास्क कौन-सा होता है करने के लिए? मुझे तो सबसे फ़ेवरेट इसीलिए ज़्यादा ये लगता है क्योंकि मैंने ये बहुत ज़्यादा किए हैं इंटरव्यूज़ और इंटरव्यूज़ के लिए मैं जब इंटरव्यू जिस दिन नहीं होता उस दिन मैं कुछ ज़हनी डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ कि क्यों नहीं हुआ और मुझे इंटरव्यू करना है उसके लिए मैं बेचैन रहती हूँ लेकिन क्योंकि मैं बच्चों को लिंक भेजती हूँ या मैं जो
उस पे ग्रुप में आते हैं बच्चे, तो उनको मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ कि मुझसे इंटरव्यू कर लें, लेकिन बच्चों का उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आता और बच्चे दूसरों से इंटरव्यू करते हैं और मुझसे करना पसंद नहीं करते, पता नहीं या डरते हैं, क्या चक्कर है। बहरहाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने बच्चों से कहिए कि मुझे इंटरव्यू दें भी, ले भी, क्योंकि मैं मुझे देना भी अच्छा लगता है और लेना भी अच्छा लगता है। नहीं, नहीं, बिल्कुल हम अपने बच्चों से आपको ज़रूर कनेक्ट करेंगे, बस आप परेशान मत होइएगा, हमारे बच्चे आपको बार-बार मैसेज करना शुरू कर देंगे कि मतलब वन बाय वन तमाम बच्चों के मैसेजेस आ जाएँगे इंटरव्यू के लिए, तो मैं आपके साथ ज़रूर स्केड्यूल करवाती हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसा मुझे मिल रहा है और मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं इस इंटरव्यू को एंडिंग की तरफ करूँ। दिल चाह रहा है वहीं आऊँ, आपके पास आऊँ, बैठ के चाय पीऊँ और बहुत सारे गप्पे-शप्पे, गपशप करूँ और बहुत कुछ सुनूँ, आपकी बहुत सारी कहानियाँ और आपकी ज़बानियाँ। बट जैसा कि हमारा एक टाइम बाउंड होता है कि हमारा आपका भी कीमती वक़्त है, तो बस मैं यही यहाँ पे कहूँगी कि मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ आपकी इस सोच के लिए, आपकी इस मेहनत के लिए, आपकी और माशाल्लाह आपके अंदर मोहब्बत बहुत है। मैं जब-जब डिफरेंट-डिफरेंट जगहों पे आपसे मिली हूँ, तो जो आप खुल के इज़हार करती हैं ना मोहब्बत का, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो एक अपनाइयत वाली जो पहली मुलाकात में अपनाइयत वाली फीलिंग आ जाती है ना, वो मुझे आपसे बहुत उनसियत हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला ये सफ़र यूँ ही जारी रहेगा और हम लोग की मोहब्बतें यूँ ही बरकरार रहेंगी। आप हमारी ज़ीनत हैं और अल्लाह ताला आपको और उरूज तरक्की का कामयाबी अता फ़रमाए और मैं आपकी बहुत-बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती वक़्त दिया और आप इंटरव्यू के लिए आईं। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप कुछ एंड में कहना चाहें तो प्लीज़। बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे भी आपका बोलना, आपके बातचीत करना, इखलाक बहुत अच्छा लगा और मैं समझती हूँ कि आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम करती हैं और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की अता फरमाएंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों के जैसे और लोगों को भी हिम्मत अता फरमाए और वो आगे बढ़ें और एआई के दौर को अपना लें। शुक्रिया। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मेरी तरफ से आपको ये दिल, बहुत सारा प्यार, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू, बहुत मुझे शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान अल्लाह जिंदाबाद। ज़िंदाबाद। थैंक यू सो जिंदा मच। अल्लाह बाय। अल्लाह